Hello students, welcome to all of you on this channel. So our today's topic which is under discussion is again from BSc first year, and the topic name is colligative properties of a dilute solution. So these are the four examples of colligative properties. So we are going to study in detail about all these four colligative properties, but before going in detail you should know the definition of colligative properties. सो जो थोनों डेफिनेशन है जी वो पता होनी चाहिए. सो colligative properties पहला तो किसी भी सॉल्यूशंस के लिए डिफाइन की जांदियां ने. So these are the properties of solution involving non-volatile solute. So these properties do not depend upon the nature of a solute dissolved, but depend only upon the number of particles of a solute present in a solution. सो ये जो colligative properties ने ये कदे भी नेचर ऑफ सल्यूट ते नहीं डिपेंड करदियां, ये जस्ट डिपेंड करदियां ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट कि सल्यूट दे किन्ने पार्टिकल्स ने. एंड ये जो प्रॉपर्टीज़ ने इन्हां दे लई रजे की हुंदा नॉन वोलेटाइल सल्यूट नूं ही सॉल्वेंट दे विच डिसॉल्व किया जांदा. So further four examples ne. First is lowering of vapor pressure of solvent, then osmotic pressure of solution, then elevation in boiling point of solvent, then depression in freezing point of a solvent. So ਆਪਾਂ Rawls law ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ presence of non volatile solute ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ solvent ਦੇ ਵਿੱਚ dissolve ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it reduces the escaping tendency of solvent. सो जिहदे करके वेपर प्रैशर सल्यूशन दा लोअर हो जाता. एंड वी ऑलरेडी डिस्कस दैट वेपर प्रैशर इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. एंड अगर वेपर प्रैशर लो हो जाता दैन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस. सो मतलब ऐदा जिहड़ी एक्सप्लेनेशन है एग्जाम्पल्स दी रिगार्डिंग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़. एंड दैन यू शुड नो कि जो colligative properties ने they are true for dilute solutions, so we usually call them as colligative properties of dilute solution. And next point you should know that in these cases you should take the solute which is non-electrolyte. Why it is so? Because अगर solute electrolyte होगा then there is a possibility कि वो dissociate होके large number of ions दे दे. लार्ज नंबर ऑफ आइंस मतलब नंबर ऑफ आइंस की होगी इंक्रीज हो गए, जिदे करके कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ ते की पै सकदा इफेक्ट पै सकदा. सो इट इज़ बैटर कि जो भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करनी है, एक्सपैरीमेंट स्टडी करनी है या फिर उन्होंने रिगार्डिंग कोई भी डेरिवेशन करनी है, दैन इट शुड बी अज्यूम्ड दैट द सल्यूट इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ओके, एंड सल्यूशन शुड बी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी. नो first we are going to study about the lowering of vapor pressure. So this is the formula for relative lowering of vapor pressure. This we already discussed according to Rawls law, that the relative lowering of vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is equal to mole fraction of a solute. Are you getting my point? सो ये रजे जो राइट हैंड साइड ते है N2 अपॉन N1 अपॉन N2, इनू आपां X2 की रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट. सो इहदा मतलब जो इत्थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रैशर वो किस ते डिपेंड कर रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट ते. दैट्स वाई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रैशर इज़ अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, where P0 is a vapor pressure of pure solvent, Ps is the vapor pressure of solution, N2 is the number of moles of solute, and N1 their number of moles of solvent. And the second एक ये रजे वैसे conceptual दे लिए एक topic है कि colligative word दा मतलब हुंदा linked together, because जिन्नियां भी colligative properties ने वो interlinked हुंदियां ने with each other, because all of them depends only upon the number of particles of a solute present in a definite volume of given solvent. Okay, so next है कि आपां conclude कर रहे हैं how we conclude कि vapor pressure अपना है colligative property. ये मैं तुहानूं already दस चुकी, because जो relative lowering of vapor pressure है it depends upon the mole fraction of a solute and it is independent of the nature of solute.
इस करके जो रैलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रैशर है इट इज़ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली जदों आपां ओनली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रैशर कैलकुलेट करांगे इट अल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सल्यूट। मतलब जदों तां आपां रैलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रैशर करदे हां ये डिपेंड करदा मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट ते, बट जदों आपां लोअरिंग ऑफ वेपर प्रैशर ये डिपेंड करदा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सल्यूट डिजॉल्व्ड। मतलब क्या हैगा तां ਉਹਦੀ अमाउंट ਤੇ ही डिपेंड कर रहा ना सल्यूट ਤੇ ਉਹ अमाउंट फर्दर डिपेंड करती है मोल्स की फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ मोल फ्रैक्शन की फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। इस करके चाहे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रैशर है चाहे रैलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रैशर है दे बोथ आर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। सो ये तो होगी एक्सप्लेनेशन। नैक्सट है आप एक्सपैरीमेंटली जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रैशर है उन्होंने आप किमें डिफाइन करना। सो एक्सपैरीमेंटली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रैशर नूं डिटरमाइन करन दे लई जो डायरैक्ट मैथड है उहदे लई रजे जो अपरेटस है या जो मैथड है उहदा नाम है ऑसवर्ल्ड एंड विकर्स डायनेमिक मैथड एंड इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रांसपिरेशन मैथड। दिस इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो सब तो पहला तो तुहानूं इसका जो अपरेटस है वो पता होना चाहिए। सो लैट्स स्टार्ट विद दिस अपरेटस। सो इस दे विच रजे की है दिस इज़ दी फर्स्ट कंटेनर, दिस इज़ सैकेंड, दिस इज़ थर्ड। मतलब पहले 3 कंटेनर दे विच की फिल किया होया सल्यूशन। सल्यूशन का मतलब सल्यूट भी है उस दे विच सॉल्वेंट है, चाहे अपना जो सल्यूट है वो इस केस दे विच नॉन वोलेटाइल सल्यूट ही है बट स्टिल है तो ही की है सल्यूशन। सो रजे फर्स्ट 3 जो बीकर्स ने कंटेनर्स ने उन्होंने विच सल्यूशन फिल किया एंड जो नैक्सट 3 ने उन्होंने विच की फिल किया। सपोज इट इज़ फर्स्ट, इट इज़ सैकेंड, इट इज़ थर्ड, इट इज़ फोर्थ, इट इज़ फिफ्थ एंड इट इज़ सिक्स्थ एंड जो लास्ट 3 ने उन्होंने विच सॉल्वेंट फिल किया। ओके एंड नैक्सट जो 3 ने उन्होंने विच फिल किया एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। कहने का मतलब इत्थे आपां फिल करना एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो मॉइस्चर नू अब्जॉर्ब कर ले। इट मे बी एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड इट मे बी सल्फ्यूरिक एसिड, इट मे बी P2O5, कुछ भी हो सकता। ठीक है एंड जो आपां स्टार्टिंग दे विच पास कर रहे हैं दैट इज़ प्योर ड्राई एयर। प्योर ड्राई एयर का मतलब इट कंटेन्स नो मॉइस्चर। ओके सो उदां दी एयर है जिस दे विच कोई भी मॉइस्चर ना हो, जिस दे विच मतलब वाटर की प्रेजेंस ना हो। कहने का मतलब ये जो प्योर ड्राई एयर है इसका वेपर प्रैशर की होगा 0 बिकॉज वेपर प्रैशर किहदे करके हुंदा वाटर सॉल्वेंट करके। सो इत्थों आपां प्योर ड्राई एयर पास की पहले 3 कंटेनर दे विच सल्यूशन फिल किया, नैक्सट 3 दे विच सॉल्वेंट एंड लास्ट 3 दे विच कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जिहड़ा वो फिल करना। आई होप ये जिहड़ा तुहानूं इहदी ड्राइंग है ये क्लीयर हो गई होगी सबनों कि की है जो इसका अपरेटस है। नैक्सट हुण इहदी तुसीं वर्किंग देखो। लैट्स सी कि रजे जो फर्स्ट 3 कंटेनर्स ने पहला तो इत्थों कंप्लीटली ड्राई एयर पास हो रही है। ठीक है ये कोई वेपर प्रैशर नहीं है। सो हुण ड्राई एयर पास हो रही है, इनू तुसीं इत्थे बिल्कुल नीचे तक टच करन दी लोड़, ऊपर तक ही ड्रॉ कर सकते हो। इदा कहने का मतलब कि जिवें ये सल्यूशन इहदे विच इदां सल्यूशन पिया तो एक इनलैट होगी रजे इत्थों जिहदे विच ड्राई एयर इनसाइड आ रही है, फिर एक इदा आउटलैट होगी जिहदे थ्रू ड्राई एयर बाहर जा रही है। तो ये जो नीचे है दैट इज़ सल्यूशन। ठीक है नाउ होएगा कि जो सल्यूशन है जिसनों आपां ये बीकर दे विच फिल किया होया, देखो आप इधर राइट हैंड साइड ते बना रहे हैं। इदा एक कंटेनर है, इहदे विच की है सल्यूशन है, इत्थों दी ड्राई एयर है जो वो पास हो रही है, इत्थों दी ड्राई एयर की है बाहर जा रही है एंड इत्थों आपां कंप्लीटली की कर देना सील कर देना। नाउ जो एयर पास हो रही है दैट इज़ कंप्लीटली ड्राई, इट हैज़ नो मॉइस्चर इन इटसेल्फ। एंड जो एक होर चीज़ है रजे कि जो तुसी फर्स्ट 6 नूं इहदे विच रखना इट इज़ नॉन एज थर्मोस्टैट। मीनस फर्स्ट 6 बीकर्स नूं थर्मोस्टैट दे विच रखना
टू रेगूलेट टैंपरेचर। बिकॉज जदों भी आपां वेपर प्रैशर की स्टडी करनी आ दैन आपां नूं टैंपरेचर नूं मेनटेन करना पेगा, टैंपरेचर नूं कॉन्सटेंट रखना पेगा। बिकॉज वेपर प्रैशर है जो टैंपरेचर दे नाल बहुत ईजली वेरी कर जांदा। इस करके इत्थे आपां इन्हां 6 बीकरस नूं या फिर कंटेनर्स नूं थर्मोस्टैट दे विच रखिया होया ताकि इन्हां दा टैंपरेचर की रहे, कॉन्सटेंट रहे। ठीक है। सो हुण हो की रहा कि जो आपां कंप्लीटली ड्राई एयर नूं जदों आपां इहदे विचों पास करांगे इनलैट दे थ्रू तां जे ये सल्यूशन है, इस सल्यूशन दे विच वाटर भी होगा जिहदे करके उहदे वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाणगे। ऐदां मीनस ये सल्यूशन है बिलो दी बीकर। इत्थे जो उपर है जो मैं डॉट दे नाल शो कर रही हाँ ये की आ वेपर्स ने। दैन जिहड़ी ड्राई एयर आऊगी वो की करूगी ऐदां आउण तो बाद वेपर्स नूं अबजॉर्ब कर लूगी। मीनस आफ्टर कमिंग इदों जिहड़ी एयर बाहर आऊगी, हुण ये जो बाहर एयर आ रही है दैट बिकम्स मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब कि जिहड़ी एयर दे विच मॉइस्चर होवे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब इत्थों जो प्योर ड्राई एयर आ रही है बट जो ये बाहर निकल रही है ये वाली एयर ड्राई नहीं होगी। दैट बिकम्स मॉइस्ट एयर। मीनस ये एयर ने वेपर प्रैशर, ए वाला वेपर प्रैशर जिहड़ा ए वाला वेपर प्रैशर है ये अबजॉर्ब कर लिया तो जो एयर बाहर जा रही है वो की बन चुकी हुण मॉइस्ट एयर। सो रजे हुण आपां फर्स्टली एक होर चीज़ देखनी है कि आप 3 बीकर क्यों ले। एक बीकर नाल भी काम चल सकता सी बट 3 बीकर तां ले बिकॉज फर्स्ट बीकरस के थ्रू जो एयर आऊगी वो सारे दे सारे वेपर अबजॉर्ब नहीं करूगी। तां मतलब जो फुल कैपेसिटी है मैक्सीमम जिन्नी अबजॉर्ब करूगी वो इन्हां 3 बीकरस के थ्रू अबजॉर्ब करूगी। हुण जो एयर इत्थों बाहर आ रही है वो एयर दे विच मॉइस्चर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हुण ये एयर्स दे विच मॉइस्चर है बट हुण इत्थे आपां की लै रहे हैं सॉल्वेंट। एंड वी ऑल नो कि जो सॉल्वेंट का प्रैशर हुंदा दैट इज़ P0, इट इज़ ग्रेटर दैन प्रैशर ड्यू टू सल्यूशन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। आपां ये पढ़ चुके बिकॉज सल्यूशन दे विच नॉन वोलेटाइल सल्यूट हुंदा। सो कहण दा मतलब हुण रजे जो 4th 5th 6th बीकर है इन्हां दे उपर जिहड़े इदां वेपर बनणगे उन्हां दा वेपर प्रैशर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सल्यूशन। एंड जो फर्स्ट 3 बीकरस दे विचों एयर बाहर गई उन्हें कितना मॉइस्चर अबजॉर्ब किया वेपर प्रैशर जिन्ना सल्यूशन कोल सी बट इत्थे सॉल्वेंट का वेपर प्रैशर की है ज़्यादा। सो इसदा मतलब हुण जो एयर आ रही है बाहर जा रही है फिर ये अंदर जा रही है बाहर जा रही है वो फिर अगेन तो की करूगी रजे मॉइस्चर अबजॉर्ब करूगी तो इत्थों तक जो एयर आऊगी वो भी की होगी मॉइस्ट। मीनस इत्थे घट मॉइस्ट सी इत्थे की होगी ज़्यादा मॉइस्ट। समझ गए? सो हुण एयर ने मॉइस्चर अबजॉर्ब कर लिया। कितना मॉइस्चर अबजॉर्ब करूगी जिन्ना वेपर प्रैशर होगा रिस्पैक्टिव सल्यूशन का ते सॉल्वेंट का। एंड जो हुण अपना 3rd स्टैप है इत्थे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इहदी की वर्किंग है। सो हुण इत्थों जो एयर आ रही है दैट इज़ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब उहदे कोल मॉइस्चर है, उहदे कोल वाटर है। एनहाइड्रस का मतलब की हुंदा ड्राई, इनू की चाहिदा मॉइस्चर चाहिदा। सो इन्हें मॉइस्चर अबजॉर्ब कर लेना एंड जो फाइनली एयर बाहर जाऊगी दैट इज़ अगेन ड्राई एयर। सॉरी दिस इज़ नॉट गैस, इट इज़ एयर। सो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने मॉइस्चर अबजॉर्ब कर लेना फिर जो एयर बाहर जाऊगी वो फिर की बन जूगी रजे ड्राई एयर। सो यही इन्होंने एक्सप्लेनेशन की हुई है कि जो ड्राई एयर पास होगी सल्यूशन दे विचों वो सैचुरेटेड होगी वेपर प्रैशर नाल। कि कदों तक सैचुरेटेड हो जूगी जदों तक वो सारे का सारा मॉइस्चर अबजॉर्ब ना कर ले टिल इट्स प्रैशर बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रैशर ऑफ दिस सल्यूशन। सो हुण की हो रहा एक चीज़ होर देखो कि जो अपना सल्यूशन है देखो इस कंटेनर दे विच सल्यूशन सी, ये सल्यूशन ना भरी हुई है। सपोज कर लो ये 10 ml सल्यूशन है, 10 ml टोटल सल्यूशन है। हुण रजे जदों इनू हीट करांगे तो ये कुछ वेपर्स बन के की है उड़ गए बाहर चले गए, वो वेपर्स एयर ने अबजॉर्ब कर ले। एंड हुण आफ्टर वेपर फॉर्मेशन इहदा जो वॉल्यूम है वो की रह गया 9 ml। मतलब टोटल सल्यूशन ने कुछ जो वेट है वो की किया लॉस किया। सो एज अ रिजल्ट लॉस ऑफ वेट ऑफ सल्यूशन बल्ब टेक्स प्लेस। तो कितना वेट है जिहड़ा लॉस होगा ऑब्वियसली जिन्ना ओदा सल्यूशन वेपर च कन्वर्ट होगी। सो लॉस ऑफ वेट ऑफ सल्यूशन बल्ब
इनू अज्यूम किया होया W1 इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रैशर ऑफ अ सोल्यूशन। सिमिलरली जो सॉल्वेंट बल्ब है वो कोरस्पॉन्ड वेट है W2, उहदा भी कुछ वेट लॉस होगा, उहदा वेट कितना लॉस होगा, एंड दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। वेपर प्रैशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रैशर ऑफ सोल्यूशन। वाई इट इज़ सो? बिकॉज देखो इस कंटेनर के थ्रू इत्थे कुछ वेपर सी, सॉरी क्लास, लेट्स सी, तुसी ये समझना रजे कि देखो हुण एयर ने कितना मॉइस्चर ऑब्जर्व किया, जिन्ने इत्थे वेपर बन रहे ने, ठीक है, ये ड्राई एयर ने ये वाले वेपर्स लैके इत्थे आ गई। नो हुण अगर जो सोल्यूशन का वेपर प्रैशर है, मान लो सोल्यूशन का वेपर प्रैशर हैगा 12, जस्ट अज्यूम, एंड जो अपना सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रैशर ज़्यादा सोल्यूशन नालों, सपोज इट इज़ 15। हुण जो एयर इत्थे आ गई इहने कितना अब्जॉर्ब किया जिन्ना सोल्यूशन का वेपर प्रैशर सी, मतलब ये कोल ऑलरेडी 12 तो हैगा ही है ना प्रैशर, तो इनू कितना प्रैशर होर चाहिए सॉल्वेंट का 15 माइनस 12, बिकॉज ऑलरेडी वो कोल 12 हैगा, उन्होंने हुण सिर्फ 3 चाहिए, मतलब ताकि वह टोटल जो प्रैशर है सॉल्वेंट के कोरस्पॉन्ड्स कितना कर ले वो अब्जॉर्ब कर ले। सो इस करके अपना जो सॉल्वेंट है वो कितना वेट लॉस करूँगा जिन्ना सॉल्वेंट का प्रैशर होगा माइनस प्रैशर ड्यू टू सोल्यूशन। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड नो। So W1 is directly proportional to PS and W2 is directly proportional to P naught minus PS. So from here we conclude that P0 is equal to, after calculating both, मतलब suppose it is equation first, suppose it is equation second, after adding both these equation, P0 that is pressure due to solvent is directly proportional to W1 plus W2. Okay. सो इनू हुण तुसी रॉल्स लॉ के फॉर्मूला दे विच पुट कर सकते हो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रैशर इज दिस, पुट द वैल्यूज ऑफ P0 माइनस PS एंड P नॉट विच इज़ इक्वल टू W2 अपॉन W1 प्लस W2। W2 किया लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 बल्ब, एंड दिस इज द टोटल लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट बल्ब्स। एंड एक होर चीज़ तुसी ध्यान रखनी आ कि रजे जो फर्स्ट 6 कंटेनर्स ने उन्होंने की किया, वेट लॉस किया, उन्होंने जिन्ना वेट लॉस किया उन्ना ही वेट की करूँगा कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब की करनगियां गेन। सो इंक्रीज इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड W3 इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रैशर ऑफ सॉल्वेंट। या तुसी ये भी कह सकते हो कि आ दोनों की आ कि जिन्ना उन्होंने वेट की किया लॉस किया, सो जिन्ना इन्होंने वेट लॉस किया उन्ना ही वेट डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा W3 ने, बिकॉज जिन्ना इन्होंने वेट लॉस किया डिक्रीज होया उन्ना इहदा वेट इंक्रीज होया वधिया। सो इस करके जिथे W1 प्लस W2 है उहदी जगह ते आपां सिंपली W3 भी पुट कर सकते हैं, बट इन्होंने इस फॉर्म 'च लिखा होया कि जिन्ना इंक्रीज होया वेट, कितना इंक्रीज वेट होगा वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रैशर ऑफ सॉल्वेंट दे। क्यों? क्योंकि टोटल जो वेट लॉस होया सीगा वो किहदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल सीगा, देख लो टोटल प्रैशर कितना कल्ले सोल्यूशन का ते दोनों के डिफरेंस का, दोनों को जो ऐड करेंगे वो P नॉट दे इक्वल ही है ना, ये भी सेम दे इक्वल है। सो इस करके इनू आपां इस फॉर्म दे विच भी की कर सकते हैं, सबस्टिट्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट and the last and the most important topic of our today's discussion is this: determination of molecular mass from lowering of vapor pressure. So ये जो बेसिक फॉर्मूला है सबनों पता होएगा। नाउ नंबर ऑफ मोल्स का की फॉर्मूला होंदा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। N2 की है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, W2 की है वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली दिस इन्हां दी रजे वैल्यू इस फॉर्मूले दे विच पुट कर दो, सिंपल ही आ वैल्यूज़ पुट कीतियां ने, एंड आफ्टर सबस्टिट्यूटिंग द फाइनल फॉर्मूला बिकम्स दिस। नाउ अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो आप N2 नूं निगलैक्ट कर सकते हैं विद रिस्पैक्ट टू N1। सो इस करके रॉल्स लॉ नूं आपां इस फॉर्म दे विच भी लिख सकते हैं। ये वाली फॉर्म कदों होगी? ओनली इफ आवर सोल्यूशन इज़ डाइल्यूट। सो इनू अगेन मॉलिक्यूलर मास दे विच लिख दो
सो ये वाला जो फॉर्मूला दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज़ रिप्रजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 2 बिकॉज अगर थोनों मॉलिक्यूलर मास M2 पता M1 पता एंड वेट्स पता तो तुसी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर की कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो एंड if you know the value of relative lowering of vapor pressure and these three variables then we can calculate the value of M2 so इतना अपन numericals भी ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ solve कर सकते हैं let's see this numerical इस numerical ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ statement ਆ according to this ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ values given ਨੇ then you have to apply this formula which is for dilute solutions सो ये वाले फॉर्मूले दे विच जे सिंपली जो वैल्यूज़ ने वो सबस्टिट्यूट कीतियां एंड फाइनली अपन नूं चाहिदा की सी देखो डिटरमाइन दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट एंड सल्यूट नूं हमेशा 2 नंबर दे नाल रिप्रजेंट किया जाता सो इस करके M2 दी वैल्यू जिहड़ी आ फाइंड करनी सी जिहड़ी कि आपां फाइंड आउट कर ली सो दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स इफ एनीवन हैज़ एनी टाइप ऑफ डाउट देन काइंडली आस्क मी दैट्स इट फॉर